Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you some problems on Zysisol. Before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. And also, if you like our video, to press the like button. Now, let's get started. So, in this video is going to be very special and different because यहाँ पे जितने भी हम important CSI नेट के questions discuss करने वाले हैं, उसके पहले मैं कुछ theories आपके साथ discuss करूँगी. In the note form में आप लोगों को ये पूरा मेरे YouTube चैनल के थ्रू मैं आपको जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं उसका नोट फॉर्म में, ताकि आप स्टडी मटेरियल्स का सिग्निफिकेंस समझ जाओ. पहले हम उसे डिस्कस भी करेंगे थ्योरी, और उसका जो नोट है वो भी आपको मिलेंगे. उसके बाद हम आपको ईयरली पेपर डिस्कशन करेंगे. उससे कैसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होता है वो चीज़ आप रियलाइज कर सकते हो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट characteristics in Zysisol. ठीक है. First of all, we were talking about the pi back bonding. ठीक है. तो Zysisol में pi back bonding कहाँ पे होता है? This is very much known to us that the pi back bonding takes place from the metal to the alkene. ठीक है. तो ये तो आपको पता है, द बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेटल टू द एल्कीन. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है इन आवर प्रीवियस वीडियो. लेकिन उसके वजह से क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस है. अगर पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, then what happens? The alkene, which was actually supposed to be perpendicular, the alkene was perpendicular to the molecular plane. ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो इन प्लेन आ जाते हैं. दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस. क्लियर? सो वो कब होता है? वो होता है अगर नंबर 1, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑन एल्कीन. इफ देयर इज एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑन द एल्कीन, दिस इंक्रीजेस द पाई बैक बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड द एल्कीन. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. Presence of any electronegative element on the alkene which increases the pi back bonding from the metal to the alkene. इसके बाद इसे और एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, लाइक अगर metal is very much electron rich. ठीक है, if the metal is very much electron rich and the alkene contains very electron withdrawing ligands. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड्स F माइनस CN- इस टाइप ऑफ लिगेंड्स अगर हो, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है. एक है अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दूसरा है अगर एल्कीन के साथ ऐसा कोई लिगेंड है विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर. ड्यू टू दिस टू कंडीशंस व्हाट विल हैपन, दैट जो एल्कीन था which was perpendicular to the molecular plane, it will come in the same plane that of the molecule. ठीक है, so consequences क्या हो जाएंगे? The perpendicular alkene will lie in the same plane with that of the molecules, metal the other ligand. So this will lie in the same plane. This is very important point. Clear? Now see, तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है ब्यूटीफुली ओवर हियर. दो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताया. कंडीशन नंबर 1, द मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. ना यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वॉट एवर दे थिंक लाइक कोई भी चीज़ वो पढ़ाई करते हैं वो लोग एग्जाम्पल ही याद रखते हैं. सी, एग्जाम्पल से ज़्यादा आप साइंस को याद रखो. मैंने कहा मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, मेटल जो है यू कैन से दैट द D8 सिस्टम चेंजेस टू D10 सिस्टम. So this is the science. D8 system में you can say the example can be the platinum 2. So these are the examples. हमेशा examples याद रखना, science याद रखो. And D10 system में it can be examples are any D10 system like palladium in zero oxidation state or nickel in zero oxidation state. ठीक है? So the first condition, this is condition number 1, that the metal should be electron rich. And the ligand जो है यहाँ पे, the ligand is the alkene. Ligand should be hungry. ये मैंने पहले भी कहा था. कैसे hungry होता है? When it is bonded to any electron withdrawing group, it actually
withdraws the electron cloud density towards itself. As a result of which, that ligands becomes hungry. And जब pi bonding extensive हो जाते हैं, so number 2, when the ligand, in this case the ligand is alkene, becomes, in very simple language you can say, hungry. How it becomes hungry? When it is getting coordinated to the electron withdrawing group like F minus, N minus, etc. तो पहले था आपका ये alkene था, which was actually perpendicular to the plane of the metal and the other ligands. So जब ये था, ये condition में क्या था? ये condition metal was in D8 system, मतलब electron deficient species, and the ligand जो है, alkene जो है, they are attached to the hydrogen. ठीक है, so this is condition number 1 and condition number 2. तो pi back bonding अभी भी उतना नहीं हुआ. So that is why this plane is actually perpendicular to the plane, and the answer can be due to the steric reason भी आप बोल सकते हो. Due to the steric reason you can say the alkene comes perpendicular, and in this case what is happening, this will turn out, because now the यहाँ पे क्या था, this ligands were -1 minus anionic ligands. That is why यहाँ पे जो metal था, ये metal जो है, ये metal आपका plus 2 oxidation state, that is D8 system हुआ है. ठीक है, in this case the metal is in D10. ठीक है, कैसे D10 इसे बना है? जब मैंने इसे bonded किया with some neutral ligands like PPH3. So metal का oxidation state हो गया 0, and now this is D10 system. And now the hydrogens are now substituted by the electronegative elements like fluorine, and which actually withdraws the electron cloud density from the alkene, as a result of which the alkene becomes hungry and it withdraws more and more electron cloud density from the metal through pi back bonding. As a result of which क्या हो जाता है? हो जाता है extensive pi back bonding. एक्सटेंसिव पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है दैट ये जो एल्कीन है विच वाज परपेंडिकुलर टू द plane of the metal and the other ligands, it comes in plane. ठीक है, this I have beautifully given over here. Here the alkene is within the plane, and also the sp2 hybridized alkene, when it comes within the plane, turns out to be sp3 hybridized. Now see, the interesting part is मैंने ये सारी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको सब कुछ क्लियर है, नोट फॉर्म में मिल गया. अब आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आया है सब इन्हीं में से आया है. ठीक है, जब साइंस जो हम आपको पढ़ाते, ठीक है, जो साइंस होते हैं वही साइंस आपको पढ़ाते, वही साइंस पढ़ के जो क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं. तो इफ योर साइंस इज करेक्ट, ऑब्वियसली आपको नेट क्लियर करने में कोई भी नहीं रोक सकते. नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये है जून 2018 पार्ट से. दिस इज CSIR नेट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे दे हैव गिवन यू ABC 3 एग्जाम्पल्स. वहाँ पे दिया है किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. नाउ स्टूडेंट्स, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब आते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1. हाँ, वी विल एक्चुअली प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. पॉइंट नंबर 1 है, पहले हम जाएंगे पाई बैक बॉन्डिंग. पाई बैक बॉन्डिंग फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. वी विल प्रोसीड विद स्टेप बाय स्टेप. तो पाई बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कंडीशंस 2 है. एक है मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, एंड कंडीशन 2 है द लिगैंड और द एल्कीन शुड बी हंग्री when it is bonded or coordinated with any electronegative element. ठीक है, ये दो कंडीशन. सो ये दोनों ही कंडीशन जिसमें कंप्लीटली फुलफिल्ड होगा वहां पे मैक्सिमम पाई बैक बॉन्डिंग होगा. तो वो कहाँ पे हो रहा है? अब देखो ABC तीनों ही कंडीशन में it is clearly visible to us that in this case the platinum is in zero oxidation state, and this ligand the alkene is the hydrogen is actually substituted by cyanide ligand. तो यहाँ पे condition number 1 which is D10
and condition number 2, the ligand is hungry, that is getting bonded to the electronegative element. The condition number 2, both of them are satisfied. Therefore C में you are having maximum pi back bonding. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे प्लैटिनम इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब D10 सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे द एल्कीन इज रिमेनिंग द सेम. तो यहाँ पे ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन इट इज इन पार्ट बी. एंड पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे प्लैटिनम इज इन +2 क्योंकि यहाँ पे एनायनिक लिगैंड है एंड दिस इज द एल्कीन. ठीक है, नन ऑफ देम आर सेटिस्फाइड, सो यहाँ पे लीस्ट पाई बैक बॉन्डिंग होगा एज कम्पेयर टू द अदर 2. सो पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे C में मैक्सिमम है, देन B एंड देन A. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स. दे आर आस्किंग फॉर द बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ जो है किसके बारे में बोले? एल्कीन में CC बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है ना. हाउ इट इज रिलेटेड टू द पाई बैक बॉन्डिंग. अगर देखो पाई बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी विल गेट एक्यूमुलेटेड टू द pi star antibonding molecular orbital. As a result of which what will happen, the bond length between the CC bond length will increase, है ना, क्योंकि CC बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे एंड वीकर बॉन्ड लेंथ आर ऑलवेज लॉन्गर. तो पहले क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे पाई बैक बॉन्डिंग. पाई बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CC बॉन्ड लेंथ. ठीक है, दिस इज आवर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3, सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये जो हमारा ऑर्डर था दिस विल रिमेन द सेम. अगर इनवर्स होता तो ये ऑर्डर कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता. ठीक है, सो the bond length, the CC bond length in C will be the maximum, then B and then A. Obviously the answer is 2. ठीक है, तो दिस क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो पढ़ाई तो करना ही आप लोगों को, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो इसीलिए जो आंसर आप जानते हो वो आंसर कभी सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिली मिस्टेक्स हम हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज June 2013 part B question है of CSI and NET, and they are asking the metal olefin interaction, the extent of increase in metal to olefin pi donation would, what will happen? We have already discussed over here. See, मैंने discuss किया है. It would change the hybridization, the alkene जो है it will change the hybridization from sp2 to sp3 and also the perpendicular alkene will come in plane. So यही देखो जो थ्योरीज हमने पढ़ाई किया जो नोट फॉर्म में है वो सब कुछ आप वहीं से क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहा है. So the answer is, I'm not elaborating it, I have already done this. The answer is there is change in hybridization. There is change in hybridization of the olefin carbon from sp2 to sp3. This I already discussed in theory. Next, let us move on to another interesting theory. Now, this is very interesting. So, here is a complex which is given to us. In this case, they are telling you what happens. यहाँ पे जो इथिलीन मॉलिक्यूल मैंने पूरा आपको बहुत अच्छे से नोट फॉर्म में दिया है, आप इसे फॉलो करो. ठीक है, आप देखेंगे जो क्वेश्चन आया है इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है. ठीक है, नाउ सी यहाँ पे बोला है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ. तो हम जानते हैं कि ये जो एल्केन होते हैं वो बेसिकली मोस्टली क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मेटल एंड द अदर लिगेंड्स. क्यों होता है? मोस्टली ड्यू टू द स्टेरिक रीजन. ठीक है, तो वही मैंने कहा द ओरिएंटेशन of the ethylene molecule perpendicular to the PTCl3 plane is not essential for the stability of the molecule.
ठीक है, ऑफर्स नो रेजिस्टेंस फॉर दिस। नाउ व्हाट हैपेंस, तो जब ये परपेंडिकुलर होता है उसकी वजह से जो बॉन्ड होता है बिटवीन द मेटल एंड द एल्कीन, जो बॉन्ड होता है बिटवीन द मेटल एंड द एल्कीन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इज एनफ फ्री टू रोटेट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट टेम्परेचर नियरली 60 डिग्री सेल्सियस। ना यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपके रूम पे जो फैन है, ठीक है, वंस यू स्विच ऑन द फैन एंड द फैन स्टार्ट्स मूविंग, तो व्हाट हैपेंस, आप आंखों से इस फैन का 3 ब्लेड आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। व्हाई इज इट सो? बिकॉज आपके आंखों का जो टाइम स्केल है और फैन का जो स्पीड ऑफ मोशन है दोनों एक दूसरे से match nahi karte and the time scale of your eyes are enough less. So once you switch off the fan and slowly the fan, what happens, the speed of the fan gets reduced and once it gets sufficiently reduced you can then identify the different blades, क्योंकि आपके आंखों के टाइम स्केल और इसका मोशन का जो स्पीड है इन दोनों का टाइम स्केल मैच हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, दिस मेटल एंड द ओलेफिन में जो बॉन्ड है ये भी एट हाई टेम्परेचर, एट व्हाट, एट हाई टेम्परेचर ये भी काफी रोटेट करते हैं। जब ये बहुत स्पीड से रोटेट करते हैं तब स्पेक्ट्रोस्फोटोमीटर इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और चारों के चारों जो लिगेंड है यहाँ पे जो प्रोटॉन है दे सीम टू बी इक्विवेलेंट। सो एट हाई टेम्परेचर यू गेट ओनली वन पीक। समझ में आया? ठीक है, एंड so that's what I have written, that it offers no resistance. It offers no resistance to the rotation of the alkene about the metal olefin bond axis. ठीक है, so धीरे धीरे अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाते हो, कितने कम करते जाते हो, एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर लाइक 0 डिग्री सेल्सियस, तब क्या हो जाता है, ये मोशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते होते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। जब भी ये बंद हो जाते हैं वहाँ पे जो दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ठीक है, वहाँ पे जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, यहाँ पे यू सी यू आर हैविंग दिस प्रोटॉन्स विच असिस्ट टू द मेटल, सो एंड यू हैव 2 प्रोटॉन्स विच आर opposite to the metal, ठीक है। So these are the two non-equivalent proton A type and proton B type. Due to this 2 non-equivalent proton, you can say at extremely low temperature at 0 degree Celsius you actually get 2 peaks. You actually get 2 peaks when at extremely low temperature like 0 degree Celsius, ठीक है। So I have beautifully given this in the note form, ठीक है। So यहाँ पे वही मैं बोल रही थी that it is actually supposed or said that the steric due to the steric reason the alkene are actually obtaining the perpendicular orientation. Clear? So and due to this what happens, there is free rotation between the metal and the between the metal and the alkene bond and high temperature इतना ज़्यादा वो speed हो जाता है rotation से that you cannot distinguish the different protons. धीरे धीरे जैसे आप temperature decrease करते जाते हो आप differentiated protons देख सकते हो, as a result of which at low temperature like 0 degree Celsius आपको 2 peak दिखने को मिलते हैं। क्लियर? सो ये मैंने आपको थ्योरीज और साइंस समझाया। आप देखेंगे ये क्वेश्चंस यही से बनेंगे क्योंकि ऑल दिस थ्योरीज आई हैव वर्क 9 years टू मेक देम, ठीक है, आर फ्रॉम ऑल द रेप्यूटेड बुक्स, ऑथेंटिक रेप्यूटेड बुक्स। तो वही से द सेम एग्जाम्पल यू सी अ लिटिल बिट डिफरेंट क्योंकि मैंने ये बुक से लिए थे और वहाँ पे मुझे ये एग्जाम्पल मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे इथिलीन मेरे पास एक है और एग्जाम में जो आया था जून 2014 पार्ट सी, यहाँ पे 2 है, अदरवाइज द सेम स्टोरी। तो वहां पे देखो जो भी मैंने आपको थ्योरी नोट फॉर्म में समझाया क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जून 2014 पार्ट सी में they have given you one complex, the same complex that I just discussed you, ठीक है। at 20 degree Celsius you can say it is enough high temperature जहाँ पे रोटेशन काफी, there is no restriction in the rotation काफी अच्छे से हो रहा था, ठीक है। now
sorry, at 20 degrees Celsius it means the temperature is enough low. I'm very sorry, it is low temperature जहाँ पे rotation is restricted, जहाँ पे metal olefin rotation is restricted. जब ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है आपको 2 डिफरेंट प्रोटॉन्स मिलते हैं, है ना, 2 डिफरेंट प्रोटॉन्स मिलते हैं, वही HA एंड HX टाइप. सो यू आर गेटिंग 2 पीक्स. ठीक है. जब धीरे धीरे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जब आप धीरे धीरे इंक्रीज करते हो टू 70 डिग्री सेल्सियस, आपका ये इट गेट्स सेपरेटेड into a single line. Why is it so? Temperature जब धीरे धीरे increase कर लेते हो, then what happens? This metal olefin जो bond है, then what happens? This metal olefin जो bond है, this rotation speeds up. Speeds up. जब ये रोटेशन का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो और तब जाके आपको लगता है ऑल ऑफ देम आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट गेट्स कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल लाइन. क्लियर? सो यही मैंने डिस्कस किया आप लोगों से. तो आंसर over this is the which is due to the free rotation. वही मैंने कहा rotation speeds up which is due to the free rotation of the ethylene ligand about the metal olefin bond. So you see, whatever the theories I've made, the questions are coming accordingly. So it is very important to have a very good study material. ना इसके बाद हम और एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल ऑफ पोलरिटी एक्सप्लेन करेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. वी ऑलरेडी नो दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवर्सल ऑफ पोलरिटी और द Umpolang reaction in this isosalt. So in this case what happens, पहले जो एल्किन, जो फ्री एल्किन होते हैं, ये जो फ्री एल्किन होते हैं ये जो फ्री एल्किन होते हैं, so it is enough what it is rich in electron due to its pi electron cloud density. and यहाँ पे अटैक कौन करते हैं? यहाँ पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल. so it is extremely rich in electron due to the pi electron cloud density. once it gets coordinated to the metal, जब ये मेटल के साथ coordinated हो जाते हैं, so once it gets coordinated to the metal, what happens? This pi electron cloud density is now engaged in what? Is now engaged in sigma bond formation through the coordinate covalent bond. So this pi electron down density is now engaged in the sigma bond formation. So it is no longer available to the electrophile. And now this ये क्या था? ये electron rich था before coordination. Once it gets coordinated to the metal, it becomes electron deficient. So reversal in polarity हो गया, जो electron rich से converted हो गया electron deficient. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं Umpolang reaction. तो इस type of reactions को हम define करते हैं Umpolang reaction. ठीक है? So that is why once the metal which gets bonded to an alkene, the pi electron cloud density of alkene is now drifted towards this through what? And it results in the formation. It is engaged in the sigma bond formation. So it is no longer available to the electrophile. That is why यहाँ पे क्या अटैक होता है? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस. सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस and then you get the nucleophile and you have this metal.
अच्छा, so this is very important and interesting, and this type of reactions are now said reversal of polarity or Ohm-Polang reaction. So everything is changing. So this alkene is purely electron rich, that it is electron rich pi electron cloud density. Now it is now engaged in sigma bonding when it is getting coordinated to the metal. और फिर इसमें nucleophilic. So from the electrophilic reaction, it undergoes nucleophilic reaction. Clear? So I have explained this and I have given you two examples. These examples are very important. In future इस type of questions आने के chances है. तो यहाँ पे मैं एक example आपको करके दिखाती हूँ. This is the alkene which is now. This is the alkene which is now bonded to a metal. As a result of which यहाँ पे एक sigma bond formation हो रहा है. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आ गया एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है. सो ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है. ये एक न्यूक्लियोफाइल है एंड दिस न्यूक्लियोफाइल इज NeO-. क्लियर? नाउ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है एंड इट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस आर द टू एग्जांपल्स. अगेन द सेम स्टोरी. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द पैलेडियम is now getting bonded to in this form it is getting bonded to the eta 3 mode, है ना. eta 3 मोड. अच्छा, हैप्टिसिटी कैसे चेंज होता है? हैप्टिसिटी एक्चुअली रिड्यूसेस बाय 1 यूनिट. मतलब यहाँ पे eta 3 इस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फ्यूचर भी आ सकते हैं. यहाँ पे देखो eta 3 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू eta 1. यहाँ पे इट रिड्यूसेस बाय 1 यूनिट. यहाँ पे eta 2 था, यहाँ पे इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू eta 1. सो अगर इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हैप्टिसिटी का आपको स्टडी करना है, आप देखेंगे द हैप्टिसिटी यूजुअली चेंजेस बाय 1 यूनिट. यहाँ पे eta 3 got converted to eta 1. तो यहाँ पे again, so these are just the examples. ठीक है, so this is nothing but a nucleophile. यहाँ पे भी आपने देखा कि एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो रहा है. ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किया, एग्जाम्पल्स भी दिए और नोट फॉर्म में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाया. तो दैट इज व्हाट, लेट मी वंस अगेन रिकैपिचुलेट. तो फ्री एल्किन में क्या होता है, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है, दे आर अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. बट जब भी ये मेटल के साथ बॉन्डेड होते हैं इन द ज़ाइस सॉल्ट, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज नाउ एंगेज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द मेटल, सो इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो पहले क्या था, पहले ये इलेक्ट्रॉन रिच था, उसके बाद ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. एंड नाउ इट इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल. तो पहले इट वाज अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल and now it changes. So this is the change in polarity and resulting in the formation of Ohm-Polang reaction. ठीक है. Note that in the second reaction the metal atom undergoes the formal reduction. So note is also beautifully demonstrated. Now इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये भी हम देख लेते हैं. ये है जून 2012 CSIR नेट के क्वेश्चन ऑफ द पार्ट सी क्वेश्चन. तो वही आप जब सही पढ़ाई करते हो एग्जाम बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, पढ़ाई का पैटर्न ही गलत होता, एग्जाम तो डिफिकल्ट होगा ही. तो सही पढ़ाई करना चाहिए. दे आर आस्किंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द ओलिफिन अंडर द माइल्ड कंडीशन टेक्स प्लेस व्हेन इट रिक्वायर्स the activation by coordination to the metal. This is the answer.
So now let's end the video over here. I hope you like it. If you like your video, please do press the like button. Thank you for watching our video. Thank you.